Recording in progress. Shanti, good evening. Welcome. How's everyone? Good. Arna, how are you? Good. Good. Nice. It's nice to be back after a few weeks. So today we were just thinking to share some realizations from the trip. It's good for me also to revise. Is it okay to share? Is it okay for those on Zoom to share? Yes. So a पूरी trip जैसे it really felt like a dream trip in a way, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत प्लान तो नहीं किया था, पर अचानक ही things just worked out, and it just so happened that I got to spend around 6 weeks or so in India. So went to different places, mostly in Mount Abu in Vadhavan. So there were some nice opportunities for reflection and deeper, just introspection. Sabse pehle, I spent a couple of days in Ahmedabad. There's a very nice center there where one of our senior sister, she lives, her name is Chandrika Ben. तो वहाँ पे उनके साथ और जो फैमिली थे, तो 1-2 दिन वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला. तो I have my book, so maybe I'll just share some of the things that actually stood with me. तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जो रेगुलर होता है वो रूलर बनता है. किसी भी चीज में अगर हम रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट है, तो ही हम रूलर बनते हैं. रूलर मतलब then we actually gain the authority over it. वहाँ पे एक बहुत सुंदर they had a nice project which is called Universal Culture of Love, Peace and Harmony. So there is wing there in India which is called Arts and Culture Wing. तो उन्होंने ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, यूनिवर्सल कल्चर. क्योंकि ऐसे हर एक कंट्री का, हर एक रीजन का अपना अलग कल्चर होता है. इंडिया में भी अलग अलग रीजन्स का. तो वैसे अमेरिका का या अलग अलग देशों का. तो how to unite all the souls, especially in these times where these conflicts are increasing on a national, global level as well as on an individual level. So they started this initiative. It's called Universal Culture. तो कैसे love, peace and harmony, कैसे हम अपने families में कहें, communities में कहें, how to integrate it more. That was really nice. So maybe we can also experiment with that. उसमें जैसे they plan to have a few programs. So starting with some meditation, reflection, prarthana kahe, prayer, and with some sharings, and then ending with a resolution, pratigya. कि हमने क्या प्रतिज्ञा की कि आज से हम कैसे कोई भी कल्चर है उसको किस तरह से अपनाएंगे. और वहाँ पे was really nice. चंद्रिका बहन से मुलाकात हुई. तो I just asked her, what is your effort? आप क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं और रेगुलर होने का. मैंने कहा लेकिन आप तो रेगुलर हैं, इतने सालों से पुरुषार्थ कर रहे हैं.
पर शी सेड नहीं, कभी कभी जैसे बहुत बिजी होते हैं तो चार्ट लिखते, मन में तो याद करते हैं, तो हमारा धारणा एक होती है कि रात को जब हम सोए तो अपने पूरे दिन की दिनचर्या, जो हमने अच्छे कर्म किए या कुछ चेक पॉइंट्स है, तो हम लिख कर सोए। तो वो कह रहे थे कि ऐसे तो मुझे ध्यान रहता है, पर कभी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कई बार टाइम नहीं होता है। सो उन्होंने कहा फिर मैं अगले दिन लिखती हूँ। और उन्होंने कहा ये मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ कि इसको और भी रेगुलर बनाने के लिए। I was very inspired कि she's been a yogi for close to 50, 60 or more years, and still like the attention on basic principles, basic dharana is so important. और विशेष अमृत वेले के ऊपर भी वो बता रहे थे कि how important it is. अमृत वेला is our morning meditation from 4 to 5. तो उसके लिए भी वो बता रहे थे कि कितना अभी भी वो after so many years she still pays attention on that dharana. तो उन्होंने कहा कि जब तक कर्मातीत नहीं बने, कर्मातीत यानी when the soul is complete, the soul is then beyond the attraction, the pull of the body, the soul can then fly back, है ना। तो जब तक हम शरीर में हैं, इसका मतलब है कि कर्मातीत नहीं बने हैं, तब तक हमें कुछ ना कुछ पुरुषार्थ जैसे करते ही रहना है। Really nice. फिर उन्होंने ये अच्छी बात बताई कि जो वैराग्य है, लाइक कई बार हम कहते हैं कि वी शुडंट हैव एनी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एक्सटर्नल वर्ल्ड या टुवर्ड्स इल्यूजन। तो उन्होंने कहा कि वो सच्चा वैराग्य है या शमशानी वैराग्य है। शमशानी वैराग्य यानी न कभी कोई परिस्थिति आए, मेरे साथ कुछ बुरा हो, फिर हम कहें नहीं मेरा तो वैराग्य है, या किसी ने कुछ कहा तो नहीं मैं तो अभी वैराग्य हो गया, तो वो हो गया शमशानी वैराग्य, यानी सिचुएशनल, है ना। सिचुएशनल कहे तो डिसइंटरेस्ट। पर जो रियल वैराग्य है, सच्चा वैराग्य, so that comes from the realization that we are souls and there is nothing in this world that belongs to really us. फिर उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही कि जैसे कोई एक्टर है, तो एक्टर अगर अपनी स्क्रिप्ट भूल जाए तो फिर उसको कंफ्यूजन होगी कि अभी क्या करना है। तो वैसे ही हम सभी आत्माएं भी, वी आर एक्टिंग ऑन दिस अनलिमिटेड स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें हमें, राइट आरना, आर वी एक्टर्स? यस। सो एवरी एक्टर गेट्स अ स्क्रिप्ट, है ना। तो वो जो हमें स्क्रिप्ट मिली है कि हमें किस रीति से, script is our Srimad, basically, the directions that we receive, the spiritual directions. So once we remember the script, then our acting actually is good. But when we forget the script, then our acting is also not so good. So then उसके बाद फिर I spent a couple of days there, and then उसके बाद I went to Abu, Madhuban. Um, and then it was really nice experience because had gone there after 4 years. और अंदर में काफी was a lot of excitement also because in Madhuban we have upstairs, Pandav Bhavan. So Pandav Bhavan is the real Karam Bhumi of Brahma Baba, like where Brahma Baba actually used to live, and his room is there, and his cottage, and where he left the body. That place is called Shanti Stambh. फिर जहाँ पे वो क्लास कराते थे, that place is called History Hall. तो हम जब भी वहाँ पे, the vibrations there are so strong, just by being there, the soul experiences a lot of spiritual strength and power. So it was really nice just to go there and then spend like a good time in the early in the morning. So the soul felt very refreshed. Usme, as soon as, so there were a lot of changes also because I had gone there after 4 years. So first change that I noticed was, as soon as I, जैसे बाबा का कमरा है उसके आगे एक वॉल है,
तो उस वॉल पे जैसे दादियों के पिक्चर्स लगे थे. So dadis are like those who actually were the administrative heads of the organization. तो पहले मम्मा का था, मम्मा the picture you see here, मम्मा का. फिर दादी प्रकाश मणि, you must have seen somewhere. Then दादी जानकी, दादी गुलजार, and दादी रतन मोहिनी. These are the administrative heads of the organization. तो बहुत सुंदर था कि हर एक की पिक्चर थी, पीछे क्लाउड्स बने थे, मीनिंग दैट यू नो दे आर इन देयर एंजेलिक स्टेज, और उनके नीचे एक लाइन लिखी थी, एंड दैट लाइन वाज द स्लोगन ऑफ देयर लाइफ. तो जैसे मम्मा का था, उसमें लिखा था हुक्म ही हुक्म चला रहा है, मीन्स द वन हु इज द मास्टर इज गेटिंग थिंग्स डन, मीन्स आई डोंट नीड टू वरी. ऐसी दादी प्रकाश मणि का था निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी. So in every action that I do, I should have the consciousness of being an instrument, being humble, and a very sweet voice. तो ऐसी हर एक का जैसे दादी जानकी का भी था ना, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है. ऐसी दादी गुलजार का था, कुछ भी हो जाए पर खुशी नहीं जाए. और फिर दादी रतन मोहिनी का था, ब्राह्मण चिन्हम का श्रृंगार नियम और ईश्वरीय मर्यादा है. और एक दीदी मनमोहिनी का था, अब घर जाना है. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जैसे when we also leave the body, what is the legacy that we leave behind? So उसमें जैसे we should live our life by a slogan. तो कोई एक ऐसा, ऐसे तो हम सभी पुरुषार्थ करते हैं, कोई एक ऐसा पुरुषार्थ हो जो हमारा की हो, एंकर हो. Come Arna, you wanna come here? Hey, you wanna say hello to everyone? Say hello. Hello. So Arna is saying hello. You wanna introduce yourself, Arna? Hello, Om And a little Shanti. bit about yourself. My school is so funny. Your school is so funny. In what way is it funny? I do some homework from my school. You do homework from the school? Okay. Do you enjoy doing homework? Yeah, Is it not too much for you? I work a lot with my studies. Huh? I work a lot with my studies. Okay. What subjects do you study? I study my brain helps. My brain helps me think. Okay. Brain helps me think. Okay. Can you give us a part of your brain so that we can also think better? No? Good, good, good. Very good. Now sit there in the front. You know? Mm. Do you understand Hindi, Arna? Yes? So we were discussing we should live our life according to one slogan. So what is your slogan with which you would like to live your life? Like your mama and daddy? Okay, so sweet. Very nice. So what is one speciality in your mama and daddy? They work for you and they take care of you. So that's how you want to take care of everyone. That's good. Very nice. So yeah, that one realization came in, like, what legacy do I, leave behind? It's like there should be one slogan, जो हमारे पुरुषार्थ का भी anchor point हो. So that was one really nice realization. So I picked one for myself. He, when we say BK तो हम ऐसे ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं. But how about we say B Karmatit? Karmatit is like the stage of the soul beyond the pull of any actions or anything of the physical materialistic world. We have to do something, right? Yeah. In the body. So Yeah. how can we convert it where we don't do anything? Yeah, so we are actually doing, but we are not influenced
by the actions. So नहीं तो जनरली हम जो भी कर्म करते हैं या दूसरों के कर्म देखते हैं तो उसमें से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. तो कर्मातीत is where the soul isn't influenced. We are doing everything, but we are loving also, but attached also, in that way. Mhm. There's one other nice realization that God's love is unlimited, but when so I put limits on the extent and I take it. तो जितना हम उसको लेते हैं उतना हम लिमिट मेर कर देते हैं, पर परमात्मा का प्यार तो अनलिमिटेड है, राइट. And then how do I limit is, so when so in my consciousness, if I'm only remembering the one, then I am actually being in the unlimited. But if I'm remembering a lot of things, a lot of people, then I'm actually putting a limit on it. So remembering a lot of things and others, people, is actually putting a limit on my mind. So the more I Because the mind is not only thinking about God, it is correct occupied by other things. other things, right? And so when With this, I just recently came across one thing Ji, that it was a video. There's I don't know that person. He is like mostly Krishna Bhakt mm, from Vrindavan, I believe. So he was saying people then they ask भगवान हमें ये दे दो ये दे दो. तो अगर आप कुछ भी नहीं मांगेंगे बस भगवान को बस याद करेंगे और बोलेंगे जो आपको अच्छा लगता है वो हमें मिले तो भगवान like there is no limit to it. there's no limit to Similar, it. but like if there's no limit, then we Right. start asking, then we put a limit Yeah, to what we can get from God. true, yeah. When I ask something, then I put limit. When I don't ask, and it is unlimited. Yeah. Very good. Yes. Right. Nice. And then this one realization was like human or God, like human versus God. Like who occupies most of my mental space? Is it a human being or beings? Or is it the divine? So I need to really ask myself. कई बार होता है कि कोई भी चीज होती है, कुछ भी हम देखते हैं, करते हैं, तो कई बार हमें ह्यूमन बीइंग्स की याद रहती है, इसने किया, उसने बोला, ऐसे हुआ, वैसे. पर उसकी जगह क्या हमें ये परमात्मा की याद निरंतर रहती है कि नहीं, जो किसी ने कुछ हुआ भी, लेकिन उसके पीछे लाइक वी हैव respect for everyone, but internally I am deeply grateful to God, and knowing that Paramatma is sab kuch, just say he is actually making everything happen in that way. So how much do I remember God versus how much do I remember a human being? So meditation ये है, निरंतर योग है कि निरंतर हम परमात्मा की याद में रहें. Right. That was another nice point. दिन में कितने मिनिमम कितना टाइम जैसे देखो सब चीजें चलती हैं जी जी तो कम जी से कम मॉर्निंग इवनिंग करेक्ट मॉर्निंग एंड नाइट करेक्ट दो करेक्ट टाइम तो भगवान को कर दे सकते हैं, सकते बिल्कुल. क्योंकि पूरे दिन में तो और भी कर्म होते हैं, करते हैं, पर सुबह का टाइम जो है और शाम का या कहीं रात का, so that's a good time for us to remember God. तो वो हमारा टाइम हम अच्छे से यूटिलाइज करें, तो उसकी क्वालिटी बढ़ाते जाए. We forget everything else and just focus our mind on God. फिर इसकी अच्छी बात निकली कि ये जो मुरली है, जो हम मुरली सुबह सुनते हैं, तो इट इज अ सॉन्ग, इट इज फर्स्ट अ सॉन्ग. तो गीत को क्या होता है कि गीत को पढ़ा नहीं जाता है, गीत को सुना जाता है. तो जब सुनते हैं तो फिर उसमें मजा आता है. तो वैसे मुरली भी जब हम सुनते हैं तो मजा आता है,
So Murli is a song to be heard, not a poem to be read. It was really nice. One of the thoughts that had come up कि कई बार हम पढ़ते हैं, पढ़ना भी ठीक है, एज अ रिविजन वी कैन रीड इट, बट एक्चुअली इट्स अ सॉन्ग टू बी हर्ड. सुनते सुनते आत्मा को फिर ऐसे परमात्मा की बातें अंदर छपने लगती है. फिर इसमें ये भी था, जैसे मुरली में देर आर 3 एस्पेक्ट्स टू इट: टू लिसन, टू रीड एंड टू स्टडी. 3 एस्पेक्ट्स. तो पहले तो सुनना है, फिर पढ़ना है, फिर उसको स्टडी करना है. स्टडी करना यानी जैसे आना से ना होमवर्क करना, यानी उससे कोई पॉइंट लेके उसको चिंतन करना, मनन करना. सो दैट वाज रियली नाइस कि पहले हम सुने, फिर पढ़े, फिर स्टडी करें. Then there were other few thoughts. Let me project it on the screen. So there was one inspiration, says, enjoy your own company. है ना. तो कई बार we want to have good company, है ना, तो we want to have friends and family, which is all good. But when I am just by myself, then do I enjoy my company, or am I getting distracted? You know, do I need a distraction to feel, to just skip the time or pass the time, or am I really comfortable in who I am? Right? So that was really nice to just feel ki, I should actually enjoy my company, not just, time pass करने के लिए. So in order to enjoy my company, it's like, to have this, reflection, dialogue with the self, अपने आप से बातें करना, अपनी अच्छी बातों को भी पहचानना. Like, कई बार we are critical about ourselves, but also to realize what is good about myself, so that I can then start to talk to myself in that way. One other thought came, process the soul, access the divine, process the past, access the ghost. मतलब क्या मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, एंड व्हाट एम आई एक्सेसिंग. एक्सेसिंग मतलब कि क्या मुझे, मतलब व्हाट इज इट आई एम एक्सपीरियंसिंग. सो इफ आई एम प्रोसेसिंग द सोल, यानी अंदर में प्रोसेस क्या चल रहा है. कई बार हमारा पास्ट की बातें ही चलती रहती है, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ. तो जैसे ही पास्ट की बातें चलती हैं, एक्चुअली पास्ट तो कुछ है नहीं, है ना, वो हमने मन में ही क्रिएट करके रखा हुआ है. तो जैसे ही पास्ट की बातें चलाते रहते हैं, तो हम वी एक्सेस द घोस्ट. घोस्ट यानी कि भूत. तो जो भी विकार हैं, है ना, जो जिसे हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहे, या ईर्ष्या, जो भी है, तो ये सारे घोस्ट फिर आत्मा को परेशान करने लगते. तो प्रोसेस द पास्ट, एक्सेस द घोस्ट, प्रोसेस द सोल. जब हम आत्मा को प्रोसेस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ना, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा स्वदेश क्या है, मैं कहाँ से यहाँ पे इस धरती पर पाठ बजाने में आत्मा आई हूँ. सो लाइक दैट, द मोमेंट आई प्रोसेस द सोल, देन आई एक्सेस द डिवाइन. यानी जो परमात्मा है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते. सो दैट वाज अ नाइस काइंड ऑफ रियलाइजेशन. Another was, am I a householder or a guest holder? कहते हैं ना, ट्रस्टी बनना है, ट्रस्टी बन के सब कुछ संभालना है. तो ट्रस्टी मतलब है गेस्ट होल्डर, यानी ये फीलिंग कि हम गेस्ट हैं. आर यू गेस्ट? आर यू गेस्ट? हाँ. व्हाट इज मेंट बाय अ गेस्ट? हु इज अ गेस्ट? हाँ, गेस्ट इज अ फ्रेंड. राइट.
So this consciousness, feeling that I am a guest in this body, I am a guest in this world, मेहमान है हम. तो जितना वो हम सोचते हैं उतना जैसे है ना, we are no longer holding on to things, right? And then another thought was balance happens with silence. कई बार हमें लगता है हम कैसे बैलेंस करें, बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, है ना, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, है ना, spiritual, there's so many things, right? But then how do I balance? Balance happens with silence. So the more I just make my mind silent. कई बार हमें लगता है बहुत सोचते हैं, but no, the more I just keep it blank, don't think too much, just relax and just go with the flow, then automatically I uh, experience balance. Right. Then it says, stay beyond the line, how much to get involved, how much to stay detached, like a gardener. जैसे गार्डनर होता है तो उसको पता होता है कि कब पानी देना है, कब खाद देनी है, कब धूप जैसे दिखानी है, और कब कुछ भी नहीं करना है. Gardener knows all that, right? So in the same way, to stay beyond the line, like एक लाइन है जहाँ उस लाइन के इस पार हम आत्माएं रहते हैं और इस पार फिर हम ड्रामा में आते हैं. तो इफ आई एम बियॉन्ड द लाइन, है ना, तो देन आई रियलाइज हाउ मच डू आई नीड टू, जैसे कोई सीन भी चल रहा है, हाउ मच डू आई नीड टू गेट इन्वॉल्व एंड हाउ मच डू आई नीड टू स्टे डिटैच्ड. इट्स इम्पोर्टेंट. कई बार एक चीजें होती हैं जहाँ पे हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, पर कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें फिर वी बिकम अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. और कई बार हमें डिटैच नहीं होना चाहिए, कई बार वहां डिटैच हो जाते हैं. So it's like when I stay beyond, then I know when to step in and when to step out. That was a nice image. Another was कर्मातीत is कर्मेंद्रियातीत. यानी कर्मेंद्रियां जो हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, आंखें, है ना, कान, मुख, तो जैसे इनसे हम अतीत, जैसे देख रहे हैं, तो कर्मातीत यानी कि हम देख रहे हैं और देखते भी जैसे देख नहीं रहे. मतलब जो हमें आंखें दिखा रही है हम उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे, और जो आत्मा देख रही है ना, वो हम देख रहे हैं. तो एक है कर्मेंद्रियां चंचल होकर हमें कुछ अपना इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट करती है, और एक है जो आत्मा की रियलिटी है वो है. तो कर्मेंद्रियातीत यानी कि कर्मेंद्रियां जैसे दे आर नॉट पुलिंग द सोल एनी मोर, बट द सोल इज facilitating the sense organs. फिर एक बार ये विचार आ रहा था कि सोचने से नहीं होगा, नहीं सोचने से होगा. कई बार हम बहुत सोचते हैं कि ये सोचते हैं ऐसे करें वैसे करें, पर होता कम है. सोचते ज्यादा है पर होता कम है. फिर हमें लगता है कि हम ऐसे क्यों, बहुत सोचा तो हमने बहुत सारा, पर हुआ तो बहुत कम. तो देन दिस थॉट हैड कम कि अगर हम नहीं सोचते हैं तो होता है. मतलब सोचने से I'm actually diluting. If I'm overthinking about anything, I'm diluting the purity of it. So purity is actually less thinking. Like kids don't think much, है ना, तो इसीलिए they are pure. But when we become adults, right, Arna, do you think a lot? Do you think a lot? Or no, you think less? You think a lot, okay. He doesn't know what he's thinking. Right. Uh, and then and then one thought was, tiny soul is carrying such a huge body. अगर हम रियली में देखें ना, हम कहते हैं हमारा वजन इतना है, बहुत शरीर बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर एक्चुअली उसको चलाने वाली तो इतनी छोटी सी आत्मा है, क्योंकि आत्मा चली जाए तो शरीर तो मर जाएगा. सो दैट्स वन नाइस रियलाइजेशन कि कई बार हमारा ध्यान, है ना, शरीर पर ज्यादा जाता है, पर एक्चुअली उसको चलाने वाली तो कितनी छोटी सी आत्मा है ना, जैसे छोटी सी बैटरी है जो एक्चुअली चला रही. फिर देन वाज वन रियलाइजेशन वाज
लॉकडाउन इन परम धाम। परम धाम जहाँ से हम आत्माएं आती हैं, तो जहाँ हम रहते हैं ना, तो कई बार हम घर में लॉकडाउन हो सकते हैं, या कहीं भी होता है ना कि हम कोविड में लॉकडाउन था। तो जब हम मेडिटेशन में जाएं, तो हम आत्मिक स्थिति में परम धाम पहुंचकर हम कहें कि हम नॉट इन लॉकडाउन, मतलब फॉर सम टाइम आई एम जस्ट स्टेइंग देयर, आई एम नॉट मूविंग फ्रॉम देयर, आई एम जस्ट रेस्टिंग देयर इन साइलेंस, है ना। तो जैसे हमने ताला लगा दिया, अंदर से बंद कर लिया, so that way I can just feel I'm just resting my mind in my home of light, और फिर धीरे धीरे जैसे and I'm just experiencing my truth. And then another was, only the one talks to me, and only the one God talks to me, the soul. Everyone else talks to the role. है ना, बाकी हर एक, क्योंकि आत्मा तो कोई नहीं जानते हैं, तो बाकी तो सभी रोल से ही बात करते हैं। आत्मा से तो एक परमात्मा ही बात करते हैं। तो जो मुझसे, मुझ आत्मा से जो बात कर रहे हैं हम, उनकी बात को कितना ध्यान से और रेस्पेक्टफुली सुनना चाहिए। फिर ये था सोल फर्स्ट, रोल नेक्स्ट। मतलब पहला ध्यान किस पे जाता है मेरा, जब भी किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, पहला था ध्यान सोल पे जाता है या रोल पे जाता है? पहले रोल याद आता है, फिर सोचते रहे नहीं नहीं ये तो आत्मा है, या पहले याद आता है कि नहीं वो आत्मा है, परम धाम से आई हुई है, अभी इस जन्म में इस चोले में है, और अभी वो ये रोल बजाने के लिए मेरा उनके साथ इंटरेक्शन है ना। तो दिस इज लाइक टू चेक माई थॉट, है ना, पहले क्या याद आया। इट्स अ नाइस एक्सरसाइज, इट्स ऑल एक्सपेरिमेंटेशन, राइट, बट पहले क्या याद आया, आत्मा याद आई कि रोल याद आया? हाँ, ज्यादा टाइम हो सकता है रोल याद आए, पर as soon as I'm checking, वो चेक करते करते धीरे धीरे अटेंशन देते देते फिर वो आत्मा जैसे फिर याद आएगी। नो, नॉट एट ऑल, आई एम एंजॉयिंग। नहीं नहीं। Then another thought was, I don't know. And it was really nice. I don't know कि what is it that I really know. वो कहते ना कि हम चाहते हैं कि हमें सब लोग पहचाने, पर क्या हम खुद को पहचानते हैं? डू आई नो माई सेल्फ? डू आई रियली नो माई सेल्फ? द आंसर इज आई एम स्टिल डिस्कवरिंग माई सेल्फ, राइट? तो आई डोंट नो। डू आई नो एनी वन? हाउ डू आई नो एनी वन? आई डोंट नो एनी वन, है ना। तो इसलिए कोई लाइक ये बात थी कि कोई भी परिस्थिति है, कुछ भी है, द मोमेंट आई से आई डोंट नो, I don't know, means I don't go into the expansion of that thought anymore. So no, कुछ भी है क्या है, I don't know, पता नहीं, जो भी है, यानी internally, so that internally I am, not going into an overthinking mode, है ना। So this is something that really I felt it works for me. कभी भी कोई भी बात है, कुछ हुआ, क्या हुआ नहीं, like as an innocent, let's say I don't know, ये तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ. So then I stop thinking about it. If I know a lot, then I say, oh, I'll think a lot. No, no. Then was airplane mode of the soul. जैसे हम फ्लाइट्स में जाते हैं तो ना इसको फोन को एयरप्लेन मोड में रखते हैं। तो एयरप्लेन मोड में क्या होता है कि वी कांट रिसीव कॉल्स, टेक्स्ट, हम किसी को कर भी नहीं सकते हैं, तो केवल वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है। तो वो इसीलिए करते ताकि प्लेन के ऑपरेशन में डिस्टरबेंस नहीं हो। तो वैसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं, सो व्हेन आई एम सिटिंग, लेट मी टर्न ऑन द एयरप्लेन मोड, मतलब कि ड्यूरिंग दैट टाइम नो टेक्स्ट, नथिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड will come inside, nothing will go out, like no thought about external world. I'm just connected to the Wi-Fi, to God, and then it's just, and that allows me to fly. तो आत्मा को जैसे उड़ाता है एयरप्लेन मोड। नहीं तो जनरली हम थॉट्स के साथ फाइट करते रहते हैं, एक टेक्स्ट आया फिर दूसरा भेजेंगे, यानी इट्स ऑल अराउंड, लाइक हमने अंदर एक दुनिया बनाई हुई है, उसके साथ हम बात करते रहते हैं, है ना।
इधर कॉल करते हैं, साउंड वॉइसेस या टेक्स्ट मैसेजेस करते रहते हैं। तो उसको थोड़ा ब्रेक देवे और एयरप्लेन मोड में ऑपरेट करें। और ऐसे भी कर्म करते करते बीच में भी एयरप्लेन मोड में चले, फ्लाइट मोड। सो इधर आई एम इन फाइट मोड और आई एम इन फ्लाइट मोड। तो फ्लाइट मोड में आई एम जस्ट फ्लाइंग, आई एम नॉट कमिंग इनटू। फिर है सी बट डोंट सी, मैं देखे पर नहीं देखे, आई सी बट आई डोंट सी। मतलब व्हाट डज इट मीन? आई सी द सोल बट आई डोंट सी द रोल, है ना? कि आत्मा को देखें पर आत्मा का जो पार्ट है उसको उतना ध्यान नहीं दे, है ना? क्योंकि जब पार्ट पे बहुत ध्यान जाता है तो फिर हम उसमें बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं। ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों हुआ, है ना? तो जो भी है, ये सब रोल अलग है, सोल अलग है, राइट? Then it one was everything in this physical world has an expiry date. Can I see that? है ना? कि कोई भी चीज है फिजिकल वर्ल्ड में, हम शायद एक दो दिन पहले भी ये बात कर रहे थे कि ना हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है। कोई भी हम खरीदते भी हैं तो पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। तो वैसे ही अगर हम देखें तो शरीर की भी एक्सपायरी डेट है, इतने भी साल गए और उसके बाद ये चलेगा नहीं एक्चुअली। तो ऐसे हर चीज की, जहां भी हम हैं, जो भी घर में भी है, ऐसा भी नहीं कि घर फॉर एवर रहेगा, इसकी भी एक्सपायरी डेट है ना? तो जो भी चीज हम यूज भी कर रहे हैं उसकी भी एक्सपायरी डेट है। कहने का मतलब है कि कुछ भी फिजिकल वर्ल्ड में है वो ऐसा नहीं कि फॉर एवर है। कई बार हम ऐसे लाइफ जीते हैं कि हमें लगता है कि हम ऐसे फॉर एवर रहेंगे, है ना? ये ऐसे ही चलता रहेगा। पर ऐसा है, ट्रूथ ऐसा नहीं है। तो कभी ना कभी तो, है ना, चेंज हो जाएगा, वो तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो विद दैट रियलाइजेशन, वंस आई रियलाइज दैट एक्सपायरी डेट है, सो देन आई वोंट, आई विल स्टे इन क्लैरिटी। बहुत ज्यादा इल्यूजन में हम नहीं चाहिए। कई बार तो मन की इच्छाएं इतनी सारी हो जाती हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी हो, वैसा भी हो, तो इच्छाओं पर ब्रेक लगेगा, है ना? एंड देन वन लास्ट थिंग इज, कुछ भी हो जाए, स्थिति ना जाए। लाइक कुछ भी हो, लेकिन दिस टाइम स्पेशली, कि जो हमारे मन की स्थिति है वो ठीक रहे। चाहे कई बार होता है वर्क में डेडलाइन होती है, खूब काम होता है, कई बार संबंधों में कोई ऊपर नीचे हो सकता है, कई बार शरीर के साथ कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी दुनिया में कुछ भी हो, ये सब बाहर की दुनिया है, पर हमारी जो मन की स्थिति है वो खराब हम नहीं करें। बहुत मुश्किल है। मन को थोड़ा उससे अलग करके रखें। मतलब अपने अंदर की बात है, इट्स अ थॉट दैट आई हैव टू गिव इट टू माई सेल्फ। क्योंकि स्थिति खराब करने से सिचुएशन और खराब हो जाती है ना? स्थिति ठीक रखने से सिचुएशन भी ठीक हो जाती है, और स्थिति खराब होने से कोई फायदा नहीं होता, है ना? एंड देन हम बना हुआ काम भी बिगाड़ लेते हैं, और फिर देन वी हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट टू फिक्स इट। तो ये एक अच्छी बात लग रही है इस बार की, कुछ भी हो जाए, चाहे, है ना, इट कुड बी एनीथिंग, बट लेट मी नॉट कम डाउन फ्रॉम माई स्टेज, है ना? तो जो आत्मा की स्टेज है उससे हम नीचे आके, कई बार हमें लगता है जैसे, है ना, जैसे हम फ्लाइट में जा रहे हैं ना, फ्लाइट में हमारी सीट फिक्स है। अगर नीचे कुछ अगर प्रॉब्लम है तो हम फ्लाइट से नीचे कूद के तो नहीं करेंगे ना, ठीक, है ना? क्योंकि वी नो हम तो फ्लाइट में जा रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हम, है ना, अपनी जो मन की स्थिति है उससे नीचे नहीं उतरे। जैसे जैसे राजा होता है, अपने सिंहासन से नीचे उतर जाता है तो वो राजा रहा ही नहीं, है ना? तो ऐसे ही हम आत्मा राजा है, जब अपनी सीट से उतर जाते हैं तो हम राजा रहे ही नहीं, तो हम जैसे स्लेव बन गए अपनी डिजायर्स के। तो उस टाइम अपने आप को ये याद दिलाना बहुत जरूरी। सो या, दीज वर अ फ्यू थॉट्स। ऐसे तो बहुत अलग अलग अनुभव रहे
Beach May, I think I'd shared a few pictures and things as well. It was a very fulfilling experience. Thanks to everyone. आप सभी की good wishes रही, तो I had a very good time. And good to be back. Thank you. Om Shanti. अच्छा, so You read all these notes, I mean, it's so easy to remember, right? So many things. हाँ Now नहीं you can always go back and correct. see what that meant for you at that time. Yeah, correct. Exactly. Yeah, that's what I like about, writing something down, because then we can reflect back later on. एक तो कई बार होता है ये चीजें भूल जाते हैं, बात तो सिंपल होती है, और उस टाइम क्लिक, कई बार होता है एक मोमेंट होता है जब कोई बात क्लिक करती है, तो उसको अगर लिख लेते हैं तो एटलीस्ट याद तो रहती है. सो या अच्छा hope everyone is doing well. Anyone would like to share? कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? अमनदीप जी, आप कुछ बोलेंगे? How was your last few weeks? This fine. Mm. Was busy with life and work. I had like like in my related to my work, there was some fluctuation in the status of my company, like they were going through a tough time. They're still in a tough situation, but at one point in time, it did impact me that because I kept thinking about it, and then I realized that after if I stopped thinking and it was causing me headaches. Like I generally don't get any headaches, but it was like a tension headache I got for a day. I'm thinking didn't change anything. Situation changed. There were people, authorities like CEOs and all. They made some changes and all that. Things went back to normal and still working. But I'm just trying to say is that thinking just impacted me. It didn't change anything else. So now I start thinking, and now things are fine. I think it must be one of the learnings you got. That if अगर आप सोचेंगे ही नहीं उस चीज के बारे में तो फिर सब ठीक है. Yeah, that's the tricky part, no? How not to think about it. Good, very nice. Thank you. Great. Anyone else would like to share any other inspirations, thoughts? Arna would like to share any thoughts? Yes, come. Yes, what would you like to share? I like to share all my toys for the day. Share your toys? Yeah, What toys do you have? I have monster truck. Huh? Monster trucks. Monster truck. Monster. Okay. No, not monster. Monster truck. Monster truck. Okay. Acha. Awesome. That's nice. She says that she'll behave. That's why I brought her. But Okay. after the way you're playing, I'll not bring you. नहीं ऐसा नहीं. She's perfectly fine. No, it's very good. Yeah. Great. Thank I you. like to share morphine. Yeah, What's that? I want to share morphine. More? What do you want to share? Morphine. I Morphine? like to share morphine. More things. Okay. Is that morphine? Okay. Sometimes you just Right. More Yeah. things. Right. baby zone and normal. So, Right. Good. Very good. Yes. I like to share all my mama and my dad. You'd like to share everything with your mama and daddy? Yeah, Okay, good. and all of my friends.
And all your friends? Yeah. Good. Very I share anything today for myself. good. Mm. Yeah. Okay. Mhm. Nice. So I like to share all day. Mm. So, acha. So, thank you for joining. Anyone has any other thoughts? Please feel free to share. नहीं तो हम 1 मिनट बाबा को याद करते हैं. Let's take a moment. ओम शांति सौरभ भाई। ओम शांति संगीता बहन कैसे हैं? वेलकम बैक सौरभ भाई। Thank you. Nice to hear you. सब अच्छे हैं? You're doing well? जी सौरभ भाई, अच्छे हैं सब। आप अच्छे से आ गए? जी. Yeah, thank you. Yeah, it was nice. फिर मिलेंगे, आप आइए वीकेंड पे जी आइए. जरूर Come on the weekend. आएंगे कभी। जी जरूर। Nice. बाकी महेश you, भाई सौरभ भाई। बच्चे सब अच्छे हैं? सब अच्छे हैं सौरभ भाई। Good. Great. Thank you. Nice. सौरभ भाई वो पॉइंट शेयर किया था ना आपने मुरली के बारे में, पढ़ना हाँ सुनना है तब पढ़ना है तब स्टडी करना है, हाँ. तो बहुत अच्छा लगा, मुझे पता नहीं था। हम्म. इसलिए मैं चुपचाप सुनती हूँ, बाकी बहुत चीजें मुझे पता नहीं होता, मैं चुपचाप सुन हाँ लेती हूँ। right. Yeah. Nice. Thank you. थैंक यू सौरभ भाई। ओम Thank शांति। you. Om Shanti. अच्छा. Om Shanti. Let's take a moment in silence. Sha, thank you for joining. Have a nice rest of the day. Om Shanti.